हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन बडी। मेरा नाम है इरम फातिमा और आज मैं आप सभी को समझाने जा रही हूँ द एरा ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच इज़ डेटेड फ्रॉम 1865 to 1877। Reconstruction. Basically, Reconstruction refers to the reforms which were adopted in America after the Civil War of 1865, which resulted into the emancipation of slavery in America for African American people or so-called slaves. According to Henry Adam, who was one of the African American slaves, he says that freedom meant blacks should be having the same rights as white people are having. सो इन शॉर्ट रिकंस्ट्रक्शन वो एक ऐसा एरा है जिस एरा में आफ्टर द सिविल वॉर ऑफ 1865 अमेरिका ने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया कम्प्लीटली, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सब लोगों को मेहनत करनी पड़ी एंड आखिरकार वहाँ के जो स्लेव्स थे उनको गुलामी से आज़ादी मिली। इन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मेजर proponents of the Reconstruction era. Those proponents are Abraham Lincoln, who was the President of USA from 4th March 1861 to 15th April 1865. And the another person was Andrew Johnson, who was the President of USA from 15th April 1865 till 4th March 1869. These two personalities were the most famous personalities in the history of the America. Abraham Lincoln was the 16th President of the United States. He led the country to victory during the American Civil War and contributed profoundly towards ending in America. The former president is also credited with establishing a Republican form of government in America, ranked among the greatest US presidents, but was unfortunately assassinated in 1865. During Abraham Lincoln's time period, the Emancipation Proclamation was proclaimed. But it was consisted of two executive orders issued by US President Abraham Lincoln during the Civil War period only. The orders did not end slavery, which happened on December 18, 1865 with the passage of the 13th Amendment of the Constitution, which says that the slavery in the Southern America or the entire America should be ended. Andrew Johnson became the 17th President of the United States of America after the assassination of Abraham Lincoln, and the first task which he had done after assuming his office was the implementation or the enforcement of the 13th Amendment during the Reconstruction era. यानी कि हम कह सकते हैं कि जब जॉनसन आए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अब्राहम लिंकन के बाद, तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि वो गए और उन्होंने पार्लियामेंट में डिमांड किया कि हमें 13 अमेंडमेंट लेकर आना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो साउथ की स्टेट में अमेरिका की स्लेवरी है उसको अबॉलिश कर दिया जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रिकंस्ट्रक्शन के एरा ने लोगों को दिया क्या। रिकंस्ट्रक्शन हुआ, लॉज पास हुए, पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स भी आए, लेकिन एक्चुअली में क्या वो रिफॉर्म सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे, कितना बेनिफिट लोगों को पहुंचा या नहीं भी पहुंचा, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कि रिकंस्ट्रक्शन ने एक्चुअली अमेरिका को दिया क्या। तो सबसे पहले अमेरिका को रिकंस्ट्रक्शन ने दिया 13th अमेंडमेंट, जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अब स्लेवरी का अबॉलिशमेंट हो गया ऑन पेपर, ओके। एंड सेकेंड थिंग वॉज अमेंडमेंट 14, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया कि जो सिटीजन्स हैं अमेरिका में, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल हों, चाहे वो किसी देश से आए हुए जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं वो लोग हों, या फिर वो लोग हों जो पहले से ही अमेरिका में बॉर्न हुए हों, उन सभी लोगों को सिटीजनशिप का राइट दे दिया गया एज अ सिटीजन ऑफ यूएसए ऑन पेपर। डू रिमेंबर दिस थिंग कि ये सब चीज़ें सिर्फ ऑन पेपर कही जा रही थी, इन प्रैक्टिस इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड एट ऑल, ओके। एंड द थर्ड थिंग which Reconstruction had given us
was the 15th Amendment, according to which the right to vote was also given to the black people of America. But it was also on paper, but not in practice. So let's move on further. चलिए, 13th अमेंडमेंट एक्चुअली में था क्या? उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज पास हुए थे रिकन्स्ट्रक्शन एरा के अंदर, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे अमेरिका के लोगों के लिए, वो बात करते हैं. देखिए, तो पहले 13th अमेंडमेंट कहता है कि अबॉलिश होना चाहिए पूरा का पूरा स्लेवरी का जो सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता था सदर्न अमेरिका में, स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में. ओके, नॉर्थ पार्ट जो था अमेरिका का वो फ्री था, स्लेवरी वहाँ पर नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वहाँ एग्जिस्ट करती थी. बट जो साउथ का अमेरिका था, सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका था, वहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ही अपोजिट थी. वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का नामो निशान नहीं था. उल्टा हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो इकोनॉमी थी वो फ्यूडलिस्टिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी थी. ओके, जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक मास्टर होता है और एक पेजेंट होता है, या फिर उसका जो स्लेव कह सकते हैं हम एक तरीके से, जो उसके लैंड पर उस मास्टर के लिए काम करता है, और वो मास्टर उस पर्टिकुलर पर्सन को या फिर उस पर्टिकुलर स्लेव को हम कह सकते हैं अपनी एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करता था, लाइक एज अ कमोडिटी वो ट्रीट करता था. उसके लिए वो जो स्लेव था वो एज इस तरह का कमोडिटी माना जाता है कि वो जब चाहे जैसे चाहे उसको यूज़ कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसिडरिंग हिज हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ और वट एवर एनीथिंग. अगर वो कुछ सफ़र भी कर रहा होता है तब भी अगर मास्टर नहीं चाहेगा कि उसको छुट्टी मिले या फिर वो कहीं जाए कुछ भी, तो वो नहीं कर सकता. इस तरह का कुछ सिस्टम था जो हमारे साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट करता था. बट जब 13 अमेंडमेंट पास होता है हमारे पार्लियामेंट में इन अमेरिका, तो क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जॉनसन, एंड्रयू जॉनसन. सो पहला चेंज आता है कि नो वर्क फॉर द मास्टर्स. लाइक जो पहले स्लेव्स हुआ करते थे, और टू बी वेरी स्पेसिफिक अफ्रीकन अमेरिकन पीपल जो हुआ करते थे सदर्न स्टेट में अमेरिका की, अब वो फ्री हो चुके थे. किस चीज़ से? कि अब वो अपनी मर्ज़ी से अगर वो चाहें तो अपने मास्टर के लिए काम करेंगे, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो नहीं करेंगे. ऑब्वियसली कौन ही किसी के लिए काम करना चाहेगा, कौन किसी का गुलाम रहना पसंद करेगा? कोई भी नहीं करेगा. तो वही बात थी, जब उन लोगों को पूरी तरीके से फ्रीडम मिल गई, उनको कहा गया कि आप फ्री हो, आपको आज़ाद कर दिया गया है, जाओ जहाँ जाना है जाओ, तो वो चले गए, नहीं रुका कोई भी. ठीक है, ज़्यादातर लोग चले ही गए. दूसरी चीज़ क्या हुई कि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल वर फ्री टू फॉर्म देयर फैमिलीज़. ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है अमेरिकन हिस्ट्री के इतिहास में. वो क्यों? क्योंकि देखें, जो पहला सिस्टम था रिकन्स्ट्रक्शन के एरा से पहले, जब रिफॉर्म्स नहीं आए थे, उससे पहले क्या होता था कि जो मास्टर्स होते थे स्लेव्स के, अफ्रीकन अमेरिकन पीपल के जो ओनर हुआ करते थे, वो उनको पकड़ कर ले आए थे और कहा करते थे कि तुम सिर्फ हमारे लिए काम करोगे, हमारे लैंड पर रहोगे, हमारी मर्ज़ी से अपनी मैरिज अलाइंसेस करोगे, हमारी मर्ज़ी से फैमिलीज़ बनाओगे, और जब तक हम नहीं कहेंगे तुम इधर नहीं जाओगे, उधर नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, और वट एवर, लाइक बहुत तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी उन लोगों पर. लेकिन जब रिकन्स्ट्रक्शन के आने के बाद ये 13th अमेंडमेंट आता है, स्पेशली जब कहा जाता है कि यू ऑल आर फ्री फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, लाइक आपको एकदम आज़ाद कर दिया गया है, आपको इन मास्टर्स की बात मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो वो क्या करेंगे जब किसी को आज़ादी मिल जाती है? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें किसी कैदी को अगर जेल में सज़ा सुनाई जाती है और फिर वो बरी हो जाता है, तो क्या करता है? सबसे पहला वो अपनों को ढूंढता है, राइट, कि मेरी फैमिली कहाँ होगी, मेरी मम्मी कहाँ होंगी, मेरे पापा कहाँ होंगे, या फिर मेरा भाई बहन कहाँ होगा, वट एवर, वो अपनों की तलाश में निकल जाता है. सेम वॉज द सिचुएशन ऑफ दीज स्लेव पीपल. वो फ्री होने के बाद, स्लेवरी ख़त्म होने के बाद, सबसे पहले काम क्या करते हैं? वो उन जगहों पर जाकर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे वो अलग हो गए थे, या फिर जिनसे वो जुदा कर दिए गए थे इन मास्टर्स के थ्रू. तो हम देखते हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन के एरा के बाद और अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के बाद हमें डिफरेंट स्लेव्स की फैमिलीज़ का एग्जिस्टेंस मिलता है. लाइक वो अपनी फैमिलीज़ को ढूंढ लेते हैं, अपने अपने डिफरेंट क्वार्टर्स में
एक फैमिली मेम्बर्स की तरह रहने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है. ओके. एंड थर्ड थिंग वॉज दे वर फ्री फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ लैश. यस, लैश, विच मीन्स कि जो उनका मास्टर हुआ करता था उसका जब मूड आता था तब वो उनको कोड़ों से मारा करता था. अगर कोई क्रॉप फेलियर हो गई ड्यू टू द लैक ऑफ मानसून इन दैट पर्टिकुलर रीजन, जिसमें तो बेचारे उस स्लेव का कोई फॉल्ट है ही नहीं, लेकिन मास्टर को लगता था कि इसने अच्छे से नहीं रीप किया था या फिर इसने बहुत अच्छे से कल्टीवेट ही नहीं किया, तभी मतलब वो आलस दिखा गया और पूरी क्रॉप ख़राब कर दी और मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया. तो मास्टर्स जनरली क्या करते थे, स्लेव्स को कोड़ों से मारा करते थे, पनिशमेंट दिया करते थे, जो कि सबसे हार्श पनिशमेंट मानी जाती है. और पूरी पूरी रात उनको खड़ा करते थे, उनको खाना नहीं देते थे, कपड़े नहीं देते थे, लाइक जानवरों की तरह ट्रीट करना जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वो किया करते थे. तो अब जब स्लेवरी अबॉलिश हो चुकी थी तो वो सारी पनिशमेंट से ऑब्वियसली स्लेव्स फ्री हो चुके थे. तो ये सबसे अच्छा अचीवमेंट था इस 13th अमेंडमेंट का. नेक्स्ट, फीमेल्स वर अलाउड टू वर्क आउटसाइड ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस इन साउथ. जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो नॉर्दर्न अमेरिका है वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है और वहाँ की फ़ीमेल्स को कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बाहर जाकर काम करने की, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मेल्स काम कर रहे थे, इंडस्ट्रीज रन कर रही थी, कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी एग्जिस्ट करता था जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी अच्छा होता था. लेकिन इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न अमेरिका हम साउथ में क्या देखते हैं कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही रिवर्स है या फिर बिल्कुल ही उल्टी है हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो सारी जो सोसाइटी थी वो अग्रेरियन सोसाइटी थी, इंडस्ट्रीज़ का नामो निशान नहीं था. तो उसके लिए इनिशियली तो हमने देखा कि मेल्स को दिया गया कि वो जाकर बाहर काम करो, लेकिन वो उतना नहीं कर पाए क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप में फंसते चले गए. एक लोन लेते तो दूसरा चढ़ जाता, दूसरा लेते तो तीसरा चढ़ जाता और वो चुका ही नहीं पा रहे थे. तो उनको लगा कि अगर हम इस तरह से करते रहेंगे तो फिर तो हम विशियस सर्कल में फंसते चले जाएंगे डेब्ट ट्रैप के. इसलिए क्या करते हैं कि फ़ीमेल्स को भी अब चांस देते हैं ताकि वो हमारा हाथ बने और ये जो डेब्ट ट्रैप का सिस्टम है शायद हम इससे बाहर निकल पाएँ. तो वही चीज़ हुई, फीमेल्स बाहर आई और उन्होंने काम करना शुरू किया. ठीक. नेक्स्ट हमने क्या देखा इस 13 अमेंडमेंट से कि नाउ दे कैन प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ देयर ओन चॉइस. यस, यू हर्ड मी राइट कि नाउ दीज अफ्रीकन अमेरिकन पीपल वर फ्री टू choose any particular profession of their own choice, except slavery, of course. So, abolishment of slavery gave various new opportunities for these people, जिसका हमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि एक पॉजिटिविटी हमें दिखती है कि हाँ ये बहुत अच्छा था. 13 अमेंडमेंट ने काफ़ी कुछ चेंज किया इन अमेरिका. एंड नेक्स्ट, सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल इन नेचर इनिशियली. Yes, unfortunately, every society was patriarchal in nature initially. 14th Amendment, which granted citizenship to all persons born or naturalized in the United States, including formerly enslaved people, and provided all citizens with equal protection under the laws. Yes, which means कि 13th Amendment तो रहा एक तरफ, उसके बाद आता है 14th Amendment जो कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के हर एक सिटीज़न को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बॉर्न हुआ हो वो उसको भी, जो कि दूसरे किसी कंट्री से यूनाइटेड स्टेट्स में आकर सेटल हो गया हो उसको भी, और तीसरा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बॉर्न तो नहीं हुआ है या फिर किसी और कंट्री से आकर यहाँ पर रहा भी नहीं है, लेकिन उसको एज अ स्लेव कोई पकड़ कर ले आया है to work for their own farms. Okay, so उन सभी persons को yes क्या दिया जाएगा, सिटीजनशिप राइट्स दिए जाएंगे. क्यों? क्योंकि उससे उनको क्या लगेगा कि yes we are also the part of this particular country, and so that they could also develop the feeling of patriotism towards that particular America. Yes, होगा यही. उनको लगने लगा कि अगर हम लोग इनको सिटीजनशिप राइट्स दे देंगे तो हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर रुक जाएं और हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए काम करें, और अगर इनको राइट्स मिल जाते हैं तो ये कहीं भागने का भी नहीं सोचेंगे, बिकॉज उनको लगता है कि ये हमारी ही तो होम कंट्री है. ऑल तो पहले नहीं हुआ करती थी, उनको कहीं और से बुलाया गया है, लेकिन फिर भी
ये जो अमेंडमेंट्स किए जा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के, वो सिर्फ इसलिए था ताकि वहाँ का इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके और उस कंट्री को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि ओवरऑल जो अमेरिका है वो सुपर पावर की तरह इमर्ज हो जाए इन द एंटायर वर्ल्ड। 15th Amendment, which granted African American men the right to vote. Yes, you heard me right. Only the men were granted the right to vote, not the females, which was considered to be the drawback or the limitation of these Reconstruction Acts. हालांकि ये जो रिकन्स्ट्रक्शन के रिफॉर्म्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल थे फॉर दोज अफ्रीकन अमेरिकन पीपल, नो डाउट। आई एम नॉट सेइंग कि ये रिफॉर्म्स जो हुए थे वो बिल्कुल ही बेकार थे या फिर कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। यस, पहुंचा, लेकिन जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था वो शायद नहीं पहुंचा। पेपर पे लॉज जो बने वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन इन प्रैक्टिस दे वर नॉट दैट मच गुड। दे वर नॉट implemented in such a way so that they could be beneficial for each and every one of those African American people. That's why it proved to be the limitation of these reforms. Okay, so क्या कहते हैं कि अमेंडमेंट 15 हमें बेसिकली इतना बताता है कि जो अमेरिकन पीपल थे पहले तो उनको दिया गया 13 अमेंडमेंट के थ्रू स्लेवरी से अबॉलिशमेंट मिल गया। 14 अमेंडमेंट कहता है कि उनको सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाए, एंड 15 अमेंडमेंट क्या कहता है कि चलो अब उन्हें सिटीज़न तो बना लिया, कुछ राइट्स भी तो दे दो उन्हें। तो दे दिए गए राइट टू वोट, यानी कि वो अपना लीडर चुन सकते हैं, अपनी चॉइस से गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, अपनी चॉइस से वो कह सकते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ डिसीजन पसंद नहीं आया गवर्नमेंट का तो ये चेंज किया जाए। तो हम क्या देख रहे हैं, ओवरऑल जो सिनेरियो था अमेरिका का बिफोर द सिविल वॉर, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को बिल्कुल कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, उनका कोई से ही नहीं था पॉलिटिकल अरेना में। लेकिन अब रिकन्स्ट्रक्शन एरा के रिफॉर्म्स के बाद हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ही अपोजिट अरेना डेवलप हो रहा है। अमेरिका की सिचुएशन बिल्कुल ही अलग तरीके से, अलग नज़रिए से हम सबको दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कामयाब हम कह सकते हैं कदम था पूरे विश्व को एक नया नज़रिया देने का कि हाँ हम लोग इस तरह से भी लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, लोगों को उनके दायित्व बता सकते हैं, लोगों को उनके रहने का तरीका सिखा सकते हैं। और बेसिकली हम उनको एक तरीके से क्या क्या मैसेज दे रहे थे पूरे एंटायर वर्ल्ड को कि अगर हम लोग आपस में भाईचारे की तरह रहेंगे, आपस में एक दूसरे को एक अच्छा ट्रीट करेंगे, एक जैसा ट्रीट करेंगे, समान ट्रीट करेंगे, तो उससे हो सकता है कि हम एक साथ प्रॉस्पर कर जाएं। अकेला अकेला नहीं कोई कर सकता कुछ भी, किसी भी कंट्री को सिर्फ एक पर्टिकुलर अगर हम ग्रुप लेकर चलते हैं तो हो सकता है कि दूसरा ग्रुप हमारे अगेंस्ट हो। लेकिन अगर हम वही चीज़ बैलेंस करके चलते हैं तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा और मेजर स्टेप हो सकती है हमारी पूरी हिस्ट्री बदलने के लिए, जैसा कि अमेरिका में हमें देखने को मिलता भी है आगे। तो 15th अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ही अहम कदम था अमेरिका के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल स्टैंड ड्यूरिंग रिकन्स्ट्रक्शन एरा। हालांकि अभी हमने तीनों ही अमेंडमेंट्स की बात की जो रिकन्स्ट्रक्शन ने हमें दी, जिसमें कि हम देखते हैं कि 13 अमेंडमेंट ने अबॉलिशन किया स्लेवरी का, जिसमें फीमेल्स को भी स्लेवरी से अबॉलिशन मिला, उनके मास्टर्स के थ्रू जो अब्यूज़ की जा रही थी उन सभी चीज़ों से उनको आज़ादी मिल गई थी, नो डाउट, जो कि बहुत ही बेहतरीन कदम था। 14th अमेंडमेंट के थ्रू उनको भी सिटीजनशिप के राइट्स मिले एज दे मेल काउंटर पार्ट्स, जो अगेन बहुत अच्छा कदम था। 15th अमेंडमेंट, यहाँ आ जाती है सारी दिक्कत। क्यों? क्योंकि सिर्फ वोटिंग राइट्स मेल्स को ही दिए गए थे, फीमेल्स को नहीं दिए गए। तो वहाँ पर दिक्कत यही हो जाती है कि फीमेल्स ने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया कि सिर्फ मेल्स को ही क्यों दिए जा रहे हैं वोटिंग राइट्स, हम भी तो इतना काम करते हैं। ऑल्दो हम कन्फाइंड टू होम्स हैं, लेकिन सिर्फ वो नॉर्दर्न अमेरिका की बात नहीं हो रही थी। सदर्न अमेरिका में हम क्या देखते हैं कि ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्यू टू द क्रॉप फेलियर और ड्यू टू डिजीज स्प्रेडिंग, the females were getting out to work for their male counterparts or to become the hand of their
male husbands in order to support their family financially. सो उन लोगों के अंदर एक फीलिंग इमर्ज होने लगी कि जब हम लोग भी फिज़िकली उतना ही काम करते हैं, इनफैक्ट हम मल्टीपल टास्किंग करते हैं जो कि मेल्स नहीं कर पाते हैं, तब भी हमें इतना रिकॉग्निशन क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों सिर्फ मेल्स को ही वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं चलेगा, हम लोगों को भी चाहिए वोटिंग राइट्स. तो दे इनिशियली स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस थिंग कि वी शुड ऑल्सो हैव द राइट्स. सो इसी फीलिंग के इमर्जेंस के थ्रू क्या होने लगा कि बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए जाने लग गए. धीरे धीरे एसोसिएशंस फॉर्म किए जाने लग गए फीमेल्स के थ्रू, जिसमें से हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेजर एसोसिएशंस थे वो थे वुमेन सफरेज एसोसिएशन, जिसके अकॉर्डिंग सारी फीमेल्स ने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए अमेरिका में, और वो डिस्कशन करने लग गई कि हम लोगों को भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए. तो वो लोग अपनी पंचायत की तरह का, मतलब छोटे छोटे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के जैसे कुछ कुछ ग्रुप्स बना लिए और वोटिंग करने लगे अपने अंदर, और उनके थ्रू लीडर्स चूज़ कर लिए गए. ठीक है. एंड दूसरा क्या था? अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन. और उसी की छोटे छोटे ग्रुप्स फॉर्म करने की वजह से वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स के जो लीडर्स एक साथ आने लगे, उससे क्या हुआ, एक बड़े ही ग्रैंड लेवल पे अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन बन गया, जो कि पूरे अमेरिका में एक रिवोल्यूशन लेकर आया इस चीज़ के लिए कि फीमेल शुड ऑल्सो हैव द राइट टू वोट. सो आफ्टर all these steps, women finally got the right to vote in America.